Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are safe and doing well at home. On the behalf of Dr. Aqib Khan School System Banigala campus, I welcome you all to the online 4th lecture of Social Studies for Pakistan for grade 7. I request to all of you to please bring your books and open page number 55. In our previous lecture, we have already done chapter number 11, Islam in Southeast Asia, and today we are going to start new chapter, chapter number 12. The topic of this chapter is Muslim scientists, philosophers and travelers. In this chapter, we are going to learn about Muslim scientists, Muslim philosophers and Muslim travelers. Okay, let's start reading. Listen carefully. The period from the 9th century to the 15th century can be called the zenith of the Muslim world. We have historical accounts of the achievements of various people. There were scientists, mathematicians, philosophers, travelers who left behind record of what they accomplished. We give here a brief history of some of these remarkable individuals. Okay. ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. इसमें क्या कह रहा है कि 9वीं सदी यानी 9th सेंचुरी से लेके 15 सदी 15th सेंचुरी तक के अरसे को मुसलमान दुनिया का जेनिथ कहा जाता था. जेनिथ मीन्स पर्टिकुलर लोकेशन, एक ख़ास मरकज़, ठीक है, या इमेजनरी पॉइंट, एक सेंटर. हमारे पास मुख्तलिफ़ लोगों की कामयाबियों की तारीख़ इस चैप्टर में बताया गया है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उनमें से साइंसदान, रियाजीदान, फ़िलासफ़र और ट्रैवलर्स थे जिनके कारनामे रिकॉर्ड किए गए हैं. वो अपने पीछे अपने कारनामे रिकॉर्ड छोड़ के गए कारनामे के, और हम इनमें से कुछ काबिल ज़िक्र अफराद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उनकी तारीख़ के बारे में तफसील से पढ़ेंगे. तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है इब्ने बतूता 1304 to 1368. देखते हैं इन्होंने क्या किया था, ये कौन थे और इनकी हिस्ट्री क्या बता रहा है हमें. इब्ने बतूता was probably the most famous of the early Muslim travelers. On foot and on animal back, he covered about 120,000 kilometers. The equivalent of 3 times round the equator. He traveled from Spain to China and from Central Africa to the Russian steppes. His accounts tell us much about the Muslim world of the 14th century. इब्ने बतूता कौन थे? इब्ने बतूता गालिबन मुसलमान मुसाफिरों में से थे, यानी ट्रैवलर थे. इन्होंने पाउंड से चल के यानी वॉक करके और जानवरों के पीठ पे बैठ के, जैसे ऊँट वगैरह होते हैं, इस तरह के जानवरों के पीठ पे बैठ के इन्होंने यानी 120,000 किलोमीटर तय किया था, जो कि 3 दफ़ा एक इक्वेटर राउंड के बराबर होता है. इसने स्पेन से चीन और सेंट्रल अफ्रीका से रशिया के मराहिल उसका सफ़र तय किए थे, वहाँ गए थे इन्होंने. और इनकी जो हिस्ट्री है वो हमें 14वीं यानी 14th सेंचुरी के मुसलमान दौर यानी मुस्लिम जो दौर था 14th सेंचुरी का, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है. ओके. He studied law like the rest of his family, but when he was 21, he set off on a pilgrimage to Mecca. On his first journey, he went via the Red Sea to Mecca, then Syria, Iraq, Khorasan, southern Persia, Azerbaijan, and back to Baghdad. He settled in Arabia for 3 years, but then became restless again and once more set off on a long journey. His travels took him to Jeddah, Yemen, Aden, Tanzania by boat, Saudi Arabia, Oman, Hormuz, South Persia, and back to Mecca. His next journey was to the Black Sea, Saremia, Constantinople, Russian steppes, Constantinople again, then Bukhara, Samarkand, Khorasan, Afghanistan, Hindu Kush, and across the Indus. By now, he was famous and had many friends among rurals, prince, sultans and emperors. Okay. इसने क्या किया था? इसने अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह कानून की तालीम हासिल की थी, यानी इसने लॉ पढ़ा था. लेकिन जब वो 21 साल का हुआ तो मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत पर रवाना हुआ, और अपने पहले सफ़र में ही इसने सुर्ख समंदर यानी रेड सी के रास्ते से इसने ये सफ़र किया, यानी इस रास्ते से ये मक्का गए थे.
इसके बाद सीरिया, इराक, खुरासान, साउदर्न पर्शिया, अज़रबैजान और फिर वापस बगदाद आए और 3 साल ये अरब में मुकीम रहे, यानी 3 साल तक ये अरब में रहे, लेकिन फिर बेचैन होकर एक बार फिर तावील सफ़र पर रवाना हुए। इसका ये सफ़र इसे कहाँ कहाँ ले गया, यानी जद्दा, यमन, अदन, तंजानिया, यानी बाई बोट यानी कश्ती के ज़रिए सफ़र किया, सऊदी अरेबिया, ओमान, हरमूज, साउथ पर्शिया और फिर बगदाद वापस आए। और इसके बाद कहाँ गए? इसके बाद इसका जो अगला सफ़र था ये ब्लैक सी का सफ़र था इसका। ये कहाँ कहीं गए कि ब्लैक सी यानी काला समंदर, इस काले समंदर में इसने सफ़र किया। इसमें सीरिया, कॉन्स्टेंटिनेपल, रोशियन स्टेप्स, कॉन्स्टेंटिनेपल अगेन, देन बुखारा, समरकंद, खोरासान, अफ़गानिस्तान, हिंदू कुश एंड अक्रॉस द इंदस, इन इलाक़ों में का इन्होंने सफ़र किया। और ये क्या है, ये एक मशहूर मतलब थे अपने वक्त के। इनके बहुत से फ्रेंड्स थे, यानी इनके जो दोस्त थे उनमें से कौन कौन थे? हुक्मरानों के साथ इनकी दोस्ती थी, शहज़ादों के साथ, सुल्तान और शाहनशाहों में इनके बहुत ज़्यादा दोस्त थे। ओके, कम टू द पेज 56। He moved on to Delhi where he met the temperamental king Muhammad bin Tughlaq. Ibn Battuta lived in India for several years as the Qazi or judge at Tughlaq's court. He became involved in a war on the Malabar coast and was shipwrecked at Coromandel. But he sailed on to Maldives and then to Bengal, Assam, Sumatra and China, Beijing. Returning via Sumatra, Baghdad and Syria and Egypt, he made a final pilgrimage to Mecca and then returned to Morocco, again via Egypt and Tunisia, arriving home in 1349. But soon he was on his travels once more across the straits to Granada, the last Muslim kingdom in Spain. Okay. इसके बाद क्या कहते हैं इनके बारे में कि ये दिल्ली चले गए थे, वहाँ एक बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक से मिले और कई सालों तक हिंदुस्तान में रहे, यानी तुगलक की अदालत में बहैसियत जज ये कई सालों तक हिंदुस्तान में रहे थे। वो मलाबर साहिल पर जंग में शामिल हो गए, फिर यानी कोरोमंडल में जहाज़ को तबाह कर दिया। उसने मालदीव, फिर बंगाल, असम, सुमात्रा और चीन का सफ़र भी किया था, यानी सुमात्रा, बगदाद, सीरिया और मिस्र के रास्ते वापस लौटते हुए इन्होंने मक्का मुकरमा का आखिरी बार एक और दफ़ा ज़ियारत की और फिर मिस्र और तुनीसिया के रास्ते मोरक्को वापस लौट आए और 1349 यानी 1349 में अपने घर पहुँचे। लेकिन जल्द ही एक और सफ़र किया, यानी आखिरी जो सल्तनत मुसलमान सल्तनत स्पेन में है ग्रानाडा, वहाँ का आखिरी सफ़र इन्होंने फिर से किया। ओके, though he finally wanted to settle, the Sultan of Morocco ordered him to go to the Muslim state of Mali in West Africa. Crossing the terrible Sahara Desert, here he stayed for 2 years before reaching Morocco again in 1352 and then vanished from history until his death in 1368 या 1369. His account of his travels is the main source of the history and geography of much of the Muslim world in the Middle Age. यानी आखिरकार ये आबाद होना चाहते थे, अपना घर बसाना चाहते थे, लेकिन मराकश के सुल्तान ने इन्हें जो खौफनाक सहारा रेगिस्तान है उस पर अबूर करते हुए यानी उसको क्रॉस करते हुए मगरिबी अफ़्रीका में वाक़ई मुसलमान रियासत माली के नाम से एक मुसलमान रियासत जाने का हुक्म दिया। यहाँ वो 2 साल रहा, फिर 1352 में दोबारा मराकश पहुँचने से पहले और फिर अपनी मौत तक तारीख़ से मिट गया। दरमियानी उम्र की मुस्लिम दुनिया की बेशतर तारीख़ और जोग्राफ़िया का सफ़र इनका सफ़र था। ओके, ये थे इब्न बतूता। और नेक्स्ट हमारे पास है अल बिरूनी 973 to 1050. Okay, Al-Biruni was perhaps the most famous Arab scientist of early times. He was born in Uzbekistan and died in Ghazni. He was the most brilliant scholar and scientist of the time. He spoke Turkish, Sanskrit, Persian, Hebrew and Syriac.
But he always wrote in Arabic. His many books said to 113 included those on medicine, geography, astronomy, mathematics, and history. And unfortunately, many of these are believed to have been lost, but enough remain to show what a brilliant man he was, especially when one realized that he had very few reference books or sophisticated apparatus to work with. He based his work on careful observation and experiments. ओके, अल्बेरूनी कौन थे? इनका जो टाइम पीरियड था वो 973 टू 1050 था। यानी अल्बेरूनी शायद इब्तिदाई दौर का सबसे मशहूर अरब साइंसदान थे। जो पहले हमने पढ़ा इब्ने बतूता ट्रैवलर थे, उन्होंने सफ़र ज़्यादा किए थे, जबकि अल्बेरूनी जो है ये एक साइंटिस्ट थे। वो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे अल्बेरूनी, और गज़नी में इनका इंतकाल हुआ था। वो इस वक्त का सबसे ज़्यादा रोशन यानी इल्म और साइंसदान थे, और वो तुर्की, संस्कृत, फ़्रांसी, अरबी और सराइकी ज़ुबान बोलते थे। यानी बहुत सारे ज़ुबानों पे भी उनको अबूर हासिल था, लेकिन वो हमेशा अरबी में लिखते थे। इनकी जो बुक्स थी, इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, किताबें, वो अरबी में इन्होंने लिखी थी। इनकी बहुत सारी किताबों में यानी 113 किताबें हैं, जिनमें तिब, जोग्राफिया, फ़ल्कियात, रियाज़ी और तारीख़ की बातें शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये कहा जाता है, मतलब कहने में आता है कि इनमें से बहुत से खो चुके थे, यानी गुम हो गए थे। लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो किस कदर ज़हीन शख्स थे, ख़ासकर जब इनको ये जब ये महसूस हुआ कि इनके पास बहुत ही कम, मतलब जो किताबें हैं वो या जो एपरेटस है वो बहुत ही कम थे इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने मुशाहिदात और तजर्बात पर अपना काम बहुत ही मुख्तार तरीके से, मतलब अपना काम शुरू किया, अपने काम का बुनियाद रखा। बहुत ही कम, बहुत ही नफीस आलात और बहुत ही कम, मतलब जो रेफरेंस इनके पास पहले से थी, उनकी उसके बावजूद भी इन्होंने अपना काम जारी रखा। ओके। In 1017, he went to India to study the culture, and his most famous book is India, in which he describes the customs, language, science, and geography of the subcontinent in the 11th century. His other books are Chronology of Ancient Nation, Canon, a book on astronomy, Astrolabe, in which he deals with navigation, as well as a detailed amount of all the known medicinal drugs at that time and densities, which deal with metals, liquid, and jewels. He also wrote on astrology, mathematics, mechanics, meteorology, mineralogy, religion, philosophy, literature, and magic. ओके। यानी 1017 में वो सकाफ़त पढ़ने के लिए, यानी सकाफ़त का मुतालिया करने के लिए हिंदुस्तान चले गए थे, और इनकी सबसे मशहूर किताब भी हिंदुस्तान के नाम से है, हिंदुस्तान यानी इंडिया के नाम से, जिसमें वो 11वीं सदी में बरसग़ीर के रस्म व रिवाज, ज़ुबानें, साइंस और जोग्राफिया इन्होंने बयान की है। इनकी दीगर किताबें कदीम अक़वाम की तारीख़, मतलब इनकी जो दीगर किताबें हैं और भी, उनमें कदीम अक़वाम की तारीख़ है, यानी कदीम वक्त से, यानी कदीम से रिलेटेड बहुत सा कुछ है उसमें, उनकी तारीख़ है। यानी कैनॉन, फ़ल्कियात से मुतालिक़ एक किताब, एस्ट्रोलेब, जिसमें नेविगेशन के साथ साथ उस वक्त की तमाम मारूफ़ मतलब दवाइयों का ज़िक्र है। ज़ेवरात से मुतालिक़ मालूमात भी हैं उनमें, और उन्होंने क्या किया, इल्म-ओ-नजूम, रियाज़ी, मैकेनिक्स, मौसमियात, मदानियात, मज़हब, फ़लसफ़ा, अदब और जादू पर भी इन्होंने किताबें लिखी हैं। As a sideline, he wrote physics books on such topics as spring and hydrostatic, and on geography, wherein he put forward ideas that were centuries before their time. He suggested that the earth rotated on its axis, and that the Indus Valley was once a basin of the sea.
एक रुख की हैसियत से इसने स्प्रिंग और हाइड्रोस्टेटिक जैसे मौज़ूआत और जोग्राफिया पर यानी तिब्बियात की किताबें लिखी, जहां इन्होंने अपने नज़रियात को पेश किया। और इनके ज़माने से सदियों पहले उन्होंने तजवीज़ किया कि ज़मीन अपने महवर पर घूमती है। यानी इसने फ़िज़िक्स पे बहुत सारा काम किया था, यानी फ़िज़िक्स की जो बुक्स हैं इन्होंने लिखी थी। यानी ये एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियंस भी कहा जाता है। और ये कि इंडस वैली जो है वो कभी समंदर की एक घाटी थी। यानी इन्होंने फ़िज़िक्स से रिलेटेड और बहुत सारा इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, इसके बाद हमारे पास हैं क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में you have to write only 2 questions of exercise. Number first question है, what are mechanics, meteorology and philosophy? Okay, what is philosophy? Philosophy, the rational investigation of the truth and principles of being knowledge or conduct. Next, meteorology, the science dealing with atmosphere including weather and climate. Mechanics, the branch of physics that about with action of forces on bodies and with motions. Question number 2, what is the difference between astrology and astronomy? Astrology is the study that assumes and attempts to interpret the influence of the heavenly bodies on human affairs. Astronomy is the science that deals with material universe beyond the Earth's atmosphere. Okay, it's enough for today. Please note down these 2 questions in any low sheet and read this chapter in detail. Okay, about Ibn Battuta and Al-Biruni. Okay, it's all for today. If you have any issue, then you can contact us on our WhatsApp number and our school number. Okay, thank you so much, students. Allah Hafiz.